صرف اس وقت واجب ہے جس وقت آپ اس کے جسم پر ٹچ کریں گے. فرض کیا یہ چادر ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, اس کو بھی اگر آپ ٹچ کر لیتے ہیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کے اوپر نہیں ہے. لیکن جس وقت آپ اس کے جسم کو ٹچ کریں گے تو پھر یہ سارا کام جو ہے نا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن وہ صرف 5-7 منٹ جو ہوتے ہیں نا, اس کے اوپر ذہن میں رکھنا کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے تھوڑا سا, اس وقت اگر آپ کا ہاتھ ٹچ ہو جائے تو وہ نہیں, اس کا کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اس میں ایک چیز اور ہے کہ مثلاً یہ جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہاں پہ ٹچ ہو گیا یا باڈی یہی کو میں کہنا ٹچ ہو, چاہتا ہوں, باڈی کو ٹچ کرنے کی بات ہے کہ آپ کپڑوں کو نہیں ہے بھائی. کئیوں کو یہ ہے کہ جس کو جس پہ واجب ہو گیا اب اس کو مل لو تو اس کے اوپر تو نہیں گزرے. یہ لوگ کئی کہتے ہیں جس کو نہ ملو یہ نہیں کلیئر کرتے کہ جی یہ جس کے اوپر واجب ہوا اس کو ہاتھ لگایا تو دوسرے پہ ہی واجب ہو جائے. جیسے انسان مجرب ہو جاتا ہے یا احتلام ہو جاتا ہے, اس صورتحال میں وہ جو بندہ ہوتا ہے اسی کے اوپر یہ غسل واجب ہوتا ہے. اگر وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا لیتا ہے تو وہ اس کے اوپر کوئی وہ چیزیں یعنی ایسی چیز نہیں اپلائی کی. اسی طرح اس کی کیفیت ہوتی ہے. تو اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کیفیت آپ دیکھ لیتے ہیں, آپ ان کو جان اس کی نکل گئی ہے, تو اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ فوراً آپ اس کی جو چہرڑی ہے اس کو اوپر کریں, اس کو منہ اس کا بند کریں دبا کے تاکہ یہ بند ہو جائے. وہ آپ نے اس کے بند کرنے, ہاتھ جو ہے دونوں سیدھے کر دینے ہیں, پاؤں جو ہے وہاں سے کسی چیز سے باندھ کے ان کو سب کو کلوز کر دینا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر بعض کا کلوز نہیں ہوتا, انگوٹھے نہیں مل رہے ہوتے تو نیچے سے پاؤں جو ہے ایڑی ہے وہ آپ اس کو مطلب کلوز کر دیں تاکہ سیدھے رہیں. اگر نہیں ہوتے تو وہ کوئی بات نہیں. بعض کا ایسا انسان ہوتا ہے جو بیمار ہوتا ہے تو عرصے سے پاؤں وہ جوڑ لیتا ہے, تو وہ اس وقت بندے کو یعنی اس کو وہ نہیں دینی, اذیت نہیں دینی کہ جا کے اس کو مسئلہ ہوتا ہے. اس کے بعد یعنی اس کے بعد ہم اس کا غسل دینے والی بات آ جاتی ہے کہ اب ہم نے اس کو مردے کو غسل دینا ہے. غسل دینے کے لیے یعنی نہیں اتنا نہیں, اتنا پریکٹیکل ہے, بس ٹھیک ہے, سب کو پتہ ہے. آپ دیکھیں یہ ہوگا کہ آپ یہاں سے پکڑیں گے, اس کو کلوز کریں گے اور آپ یہاں جو ہے نا باندھ دیں گے. اس طرح ہاتھ جو ہے آپ نے ساتھ جوڑ دینے ہیں, پاؤں کو جو ہے نا دونوں کو آپ نے وہ کلوز کر دیں. وہ آپ باندھ دیں گے تو اس کا سسٹم ٹھیک ہوگا. اب یہ کہ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے نا غسل دینے کے لیے سب سے پہلے جو متعلقین ہوتے ہیں یا جو اس کے سربراہ ہیں ان سے اجازت لی جاتی ہے کہ جی ہم آپ کی طرف سے غسل دیں. ایکچولی جو اس کا سربراہ ہوتا ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ اس کو غسل دے. اگر وہ غسل نہیں دیتا اپنی طرف سے کسی کو نامنیٹ کر دیتا ہے, پھر اس کا کام ہے کہ وہ اس کو جو ہے ان کی جگہ پر نیابت پر غسل دیتا ہے. پھر وہ اس سے ہر طرح کی اجازت لے لیتا ہے کہ میں نے غسل دینے کی اجازت لے رہا ہوں, نمود کرنے کی اجازت کر رہا ہوں, جس کافور سب جو غسل جو دیے جاتے ہیں نا وہ سب اس سے جو ہے نا اجازت لے کے تو پھر انسان جو ہے نا اس کو غسل دینا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. غسل دینے کے لیے دیکھیں کپڑے پہنے ہوئے ہیں, کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے جو ہے نا یعنی کہ اس کو وہ نہ ہو, اس کے لیے کپڑے اس کے کاٹے ہی جاتے ہیں. کاٹنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ وہ شلوار تو اتار سکتے ہیں آپ آرام سے, لیکن قمیض جو ہے نا وہ آپ اتار نہیں سکتے. اس کے لیے پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ یعنی یہ جو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا یعنی اس کا طریقہ رکھنا آپ یہ دیکھیں یہ آپ نے ایسے رکھنا ہاتھ, آپ نے اس کینچی کو اس طرح اوپر رکھنا ہے. جب آپ اس کو ایسے لے کے چلیں گے, یہ یعنی کہ آپ کے باڈی کے جسم کو نہیں ہونا چاہیے, صرف اس خیال سے کہ اس کو نقصان نہ ہو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی کہ کوئی آپ کینچی مار رہے ہیں نیچے سے وہ ہاتھ پہ کسی جگہ لگ گیا تو پھر آپ اس کو اٹھا کے رکھیں. یہ آپ کی انگلی کے درمیان میں جگہ اسپیس ہے, آپ اس طرح لے کے ایسے جائیں گے, یہ یہاں سے یہاں تک آپ اس کو کراس کر دیں گے. اسی طرح آپ نے ادھر سے بھی اس کو کراس کرنا ہے, پھر بھی نہیں مسئلہ ہوتا ہے. یہ لے کے اس کو آپ کراس کر کے یہاں تک لے کر آ جاتے ہیں. سیکنڈ پھر ہم کرتے ہیں کہ یہ کپڑا اس طرف کر دیتے ہیں, یہ کپڑا اس طرف کر دیتے ہیں. یہ یعنی دونوں طرف جو ہے نا ہم اس کو فولڈ کر دیتے ہیں. فولڈ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو کرتے ہیں. اچھا ایک میں یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اس میں دائیں اور بائیں ہاتھ کا خیال رکھنا ہے یا جدھر سے آپ ایزی ہے؟ وہ غسل کا ہونا ہے, غسل اسٹارٹ کریں گے نا پھر ہم اس کو جو ہے نا یعنی دائیں سائڈ سے کریں گے پھر بائیں سائڈ. صحیح. تو اب جب ہم کوئی نہیں احترام ہے, ہاں کوئی بات نہیں, جی ہاں ٹھیک ہے. اب جو ان کو غسل دینا ہے, اب یہ نہیں سوری بھی کپڑے اتارنے, ٹھیک ہے نا. اب وہ سیدھا جی پہلے سب سے یعنی ادھر رکھتے ہیں, پہلے ہم کر دیتے ہیں جو کپڑے اتار رہے تھے نا تھوڑا سا ایسے کر کے, اب یہ جو ہے نا اس کو ادھر کیا ہوا اس کو ادھر کیا ہوا, یہ ادھر اس سے اٹھا کے ایسے کر کے یہ نیچے آ جائے گا سارا, اس کو نیچے کر لیں گے, اس کو واپس رکھیں گے, اس کو یہاں رکھیں گے. یہ سارے اسٹیپ ہیں.
इसलिए कि अगर आपने छोड़ा पाँव हाथ नीचे लगेगा, नीचे नहीं लगने देना, उससे अजियत ना हो। ये आप इसको ऐसे उठाएंगे, इसको भी ऐसे करें, ठीक है ना, यहाँ। उसके बाद में स्टेप इसी को ऐसे जोड़े साथ, थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो ये इधर से सारा चीज़ का निकल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में ये जो शलवार उतारनी होती है, ये जो भी कुछ होता है हम ऊपर कपड़ा डाल देते हैं, जो हमारे पास होता है ना साफ, वो ऊपर कपड़ा डाल देंगे, फिर इजीली जो है ना थोड़ा सा उठाएंगे और वो दोनों चीज़ें जो है सारी शलवार जो है उतर जाती है। इसके बाद जो है अब हमने इसको माशाल्लाह सारे बड़े हैं, जो भी किसी को इस्तेमाल हो जाता है, तो जो गुस्ल का तरीका है सेम यही तरीका इसमें भी है। यानी जब हम गुस्ल अपना करते हैं, जब हमें निजासत में लग जाती है इस सूरत में, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, निजासत को दूर करते हैं, ठीक है ना। पानी से जो जगह हमारी नजीस शर्मगाहें जितनी होती हैं, पहले हम उसको अच्छी तरह से धोते हैं। जब वो पाक साफ़ हो जाएगी, निजासत दूर हो जाएगी, साबुन लगा के कपड़े से जिस तरह भी है, वो जब आपका सारा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर आप गुस्ल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने निजासत को दूर करना है। निजासत को दूर करने के लिए इसी तरह ये कपड़ा, उसके ऊपर जो शर्मगाह है इसके ऊपर कपड़ा डाल दिया जाता है। कपड़ा डालने के बाद उस तरह उसके अंदर ही होगा, तो फिर वो ठीक है, वो आज नहीं होगा। हाँ, वो कोई नहीं बात ठीक है, ठीक है। नहीं। अब आपने यहाँ कपड़ा डाल दिया ना, तो ये हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं हल्का सा, यहाँ से जो है ना कपड़े के साथ एक वहाँ से कुछ वो कपड़ा निकाल, ये ऐसे डाल दिया। अब जो दोस्त दूसरे अब आप खड़े होते हैं ना, उनको कहा जाता है कि थोड़ा सा इसे ऐसे ना कर लें, और ये शर्मगाह के ऊपर नाफ के नीचे से ना पानी डाला जाता है, ताकि उसकी शर्मगाह जो है ना उस जगह तक पानी पहुँचे, क्योंकि वो हमने शर्मगाह को कवर किया होता है और नीचे सफाई करनी है, तो फिर हम ये इस तरह कवर कर लेते हैं। लेकिन ये जो दरमियान वाली जगह होती है, इसमें जो आपने पहना होता है, ग्लव्स पहने होते हैं, दूसरी चीज़ पहनी होती है, उसमें आप कॉटन इस्तेमाल करते हैं। कॉटन को गीला कर लेते हैं, ड्राई खुशक नहीं करते, गीला करके उसको जब आप इस साइड से उसके शर्मगाह तक लेके जाते हैं, तो कोशिश करते हैं फिर उसे आराम से जो है ना वहाँ से थोड़ा सा खींच के उस कॉटन को ना देखा जाए कि आप फेंक देते हैं डस्टबिन में कि अभी तक इसमें से हमारी गंदगी आ रही है। जब तक वो उसका प्रोसेस आपका मुकम्मल नहीं होता, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 दफ़ा आपने मुसलसल इस काम को करना है। खुसूसन आपकी जो शर्मगाह है पेशाब वाली जगह है, क्योंकि सबसे अहम मसला होता है कि जब जान निकलती है तो पेशाब के ज़रिए से ऐसी चीज़ें निकलती हैं कि जो जिस्म की ऐसी चीज़ होती है, तो वो आपने उसको ग्लव्स पहने होने, ग्लव्स के बगैर आपने काम नहीं करना। खुसूसन शर्मगाह का आपने पहले पेशाब वाली जगह को अच्छी तरह से उसको इसी तरह धोना, वो उधर से वो पानी डालते रहेंगे, वो पानी कंटिन्यू रहेगा, पानी को रोकना नहीं है, ताकि जैसे जैसे कोई निजासत आती रहे आप उसको साफ़ करते हैं। आप पहले पेशाब की जगह को अच्छी तरह साफ़ करेंगे, उसके बाद फिर आप शर्मगाह को इसी तरह साइड से पकड़ेंगे और वो उसको जो ना निकालते जाएंगे, उधर से पानी का कंसिस्टेंट रहेगा। जब वो आप देखेंगे कि कॉटन जो है ना वो अब साफ़ वापस आ रही है, आप देख रहे हैं, फिर आप उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद अगला स्टेप हम ये भी करते हैं, फिर हम किसी तरफ से भी हो जाता है, फिर हम थोड़ा सा करीब हो जाए, यानी थोड़ा सा ऐसे करके ना, ऐसे करके ना फिर उसकी जगह से भी ना एहतियातन जो है ना हम साफ़ कर देते हैं, कि ताकि अगर कोई हमें नीचे इधर साइड पर जगह महसूस हो तो सब का सब जो है ना गंदगी जो है ना वो सारी साफ़ हो जाए। वो भी कवर करके भाई जी वो ये रहेगा ना, कपड़ा को यानी कि वो ये नीचे ऐसे हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे साइड से, वो कपड़ा पूरा जो ना ये यानी इस तरह कवर होता है, जगह सारा खुला नहीं चाहिए। हाँ। सबसे ज़्यादा अहम बात होती है कि ये गुनाह की बात होती है कि आप इसकी शर्मगाह को देखें, लेकिन अगर आपका ऐसे कोई आँख यानी देखने पड़ जाता है या वैसे मसला हो जाता है तो वो अर्ज नहीं, लेकिन उसको देखना नहीं है, ज़हनी तौर पर तवज्जो को हाँ। दूसरी एक और अहम बात है कि जिस वक्त आपने किसी को गुस्ल देना है, तो गुस्ल देते हुए बाज़ का हर आदमी की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो ना आपको महसूस होती हैं, हर तरह का मसला होता है, तो आपने उसकी बात को उसी के सामने बयान नहीं करना। ये पर्दा रखना आपके ऊपर सबसे अहम ज़रूरी है। ये नहीं आप कहें जो वो उसकी फ़लाने का ऐसे थी, उसमें ये उसको मैंने देखा था, वो तो ऐसे हो गए थे, वो तो फ़लाने पाँव ऐसा हो गया था, उसकी उंगली ऐसी हो गई थी। ये सब चीज़ों से ना आपने परहेज़ करना है, क्योंकि ये आपका अमानत है। इस अमानत को आपने जो ना ज़ाया नहीं करना, क्योंकि जो इसका सवाब है वो इसी सूरत में है जब आप इसके लवाज़मात को भी ख्याल रखेंगे। अगर आप उसको ऐसे करेंगे तो वो मुनासिब नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो गुनाहगार की बहुत सारी बातों में आता है। इसके बाद ये शर्मगाह आपने अच्छी तरह साफ़ कर ली है। अब आपने जो है
एक्सीडेंटल केस है या खून है? मुश्किल है वो फिर देखिए बहुत सारी बातें होती हैं, फिर वो पानी को कंटिन्यू रखना पड़ता है, या फिर वो उसको जो है ना दबा के उसमें से खून जो है ना कॉटन दबा के थोड़ी देर रखनी पड़ती है ताकि वो ब्लीडिंग जो है ना दूर हो जाए। वो बास का प्रोसेस चल रहा होता है, उसके ऊपर पहले जब आप कॉटन रखते हैं तो यूज़ करना पड़ता है, बास को नहीं भी क्लियर होती, लेकिन फिर वो आप पानी से जारी को रखते हैं उसके ऊपर। अच्छा, बाद मतलब ऐसा था कि जिसम ही 2 टोटों में तकसीम हो गया, उससे क्या? अब वो जो ऐसी नहीं, वो सही हालत दिखाते में नहीं, तो वो अल्लाह खैर, मुश्किल तो गुस्ल उसमें बाद में बता मुश्किलात देंगे। बहुत हो जाएंगी। मुश्किल होता ये हो जब पीछे थे पहले बेसिक पोस्टमार्टम में सीधे बात आई ना, हाँ, ये है कि ना अभी अगर उसके जिस्म पे चिकनाई लगी हुई, सिर पे मालिश तेल लगा हुआ, सारा कोई क्लियर कर सकता है। यानी कि सबसे पहले आपने ये निजात वाली जगह ना इसी को आपने साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद अब जो अगला मरहला आएगा ना, अब आपने सारे जिस्म को अच्छी तरह साफ़ करना है। ये ख्याल रखिएगा, ये कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप साबुन लेते हैं, अपने हाथ पर लगाते हैं और वो उसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये हो रहा है कि इस तरह करने से ना पूरे तरीके से वो जो चिकनाई है वो साफ़ नहीं होती। उसका बेहतर तरीका ये है कि आपके हर एक आदमी यानी 2-3 अफराद साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ग्लव नहीं होते हर एक के पास, तो कोई मसला नहीं। आप कपड़ा लें, उसको थोड़ी देर ज़रा साफ़ करें, उसमें जो लगी होती है चीज़ जो लगा होता है वो साफ़ हो जाता है, फिर कपड़ा ठीक हो जाता है। अब आप साबुन उसको लगाएं, साबुन लगा कर जो साथ आपके कोऑपरेट कर रहा हो चल रहा है ना, वो उसको आप आहिस्ता आहिस्ता मलते जाएँ, मलना आहिस्ता आहिस्ता ही है, तेज़ ज़ोर से नहीं मलना, क्योंकि जो उस मुर्दे की कैफियत होती है ना, वो जैसे कहते हैं कि कांटों वाली झाड़ी और उससे मलमल का दुपट्टा अगर खींच लिया जाए तो हर जिस्म इतना दर्द कर रहा होता है, तो उस कैफियत को मद्देनज़र रखना है। और एक एहतराम बहुत ज़रूरी है, इस बॉडी का एहतराम ज़रूरी है कि इसको इस हवाले से भी रहे कि यार जान फटाफट फारिग नहीं करना, तो अमल से आराम से और इन तमाम चीज़ों को ख्याल रखते हुए, रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए ये आपने सारा काम करना है। कपड़े को जब आप लगाएंगे, एक आदमी अगर दाएं पे खड़ा हुआ, बाएं खड़ा हुआ, सर जो है आपने सर को अच्छी तरह धोना है, ये कान है आपने जैसे आप अपने आप को साफ़ करते हैं, ये कान जो है सारे आपने करनी है, हाथ की जो उंगलियाँ बगल जो होती है, ये सब जगहों को आपने अच्छी तरह साफ़ करना है। इसी तरह आपने पाँव की उंगली है, सब जगह, क्योंकि बाज़ का आदमी महीना 2 महीने इस कैफियत में चल रहा होता है, तो वो गुस्ल कोई नहीं देता उससे, या सफाई उसने नहीं की होती, उस सूरत में जिस्म सारा चिकना होता है। तो इसलिए आपने राइट लेफ़्ट इसमें, क्योंकि वो पाबंदी नहीं है कि आपने दाएं से शुरू करना, बाएं से करना, कुछ नहीं करना। आपने कोशिश करनी कि पहले आप सर को अच्छी तरह धोएं, साफ़ करें, मलें अच्छी तरह, फिर दोबारा करें। अपने आप को हाथ जब आप फेरेंगे आपको पता लग जाएगा कि इस वक्त यहाँ इस जगह पर चिकनाई है कि नहीं है। जब आप इसको धो लेंगे, फिर इसी तरह वही वाली बात है, जिस्म को इस तरह फोल्ड करें, हाथ को ऐसे करें, थोड़ा सा इधर करें, आप बस ये जिस्म आएगा, इस जिस्म को साबुन लगाएं अच्छी तरह, पीछे से साबुन लगाएं, ये सब जगह जो है ना, ये जो शर्मगाहें हैं वो भी इसी तरह जो है ना साफ़ हो जाती हैं। फ्रंट पे जब आप आएंगे, हर वक्त इसका ख्याल रखना है, हर वक्त इसका ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो ना लगता है तो अजियत ना हो, एकदम छोड़ना नहीं है। आप इसी तरह उसको करना है, क्योंकि जब फोल्ड भी करेंगे तो इसी तरह इसे ऊपर पेट पे रखें आगे। और फिर और भी कई दफ़ा लोग महसूस करते हैं कि जब मर जाता है ना, लोग पेट पे वज़न रख देते हैं, या बास का पहले दौर था नमक भी रखते थे, दूसरी चीज़ें के वो यानी वो था कि पेट फूले ना, लेकिन एक्चुअली कोई वो उसका मसला नहीं, शरीर तौर पर उसमें नहीं है कि आप किसी के ऊपर कोई वज़न रखें, कोई मसला मसला करें तो वो उसका कैफियत नॉर्मल रहती है। तो ये आपने जब आप सारा एक दफ़ा इस सब चीज़ को साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरह, इसको यही जहन में है कि आपने एक अमानत है जो आपने खुदा की बारगाह में पेश करनी है। जिस तरह जस्ट एज कि हम अगर कोई न्याज दे रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो फिर हम क्या कहते हैं कि यार तहारत का ख्याल रखें, ये चीज़ें नजीस नहीं होनी चाहिए, बर्तन ठीक हो, फ़लाँ चीज़ ठीक हो। बाज़ का तो हमारे दौर पुराने दौर में तो जो ख़वातीन थी वो भी पाक साफ़ होकर ही बनाती थी, लेकिन खैर यानी कि ये इस चीज़ों को आपने अपने आप का ख्याल रखना है। और दूसरी बात है जो पहले रह गई कि आपने ये जो हाथ है ना, इसको आपने यहाँ तक फोल्ड कर लेना है, यानी कि ये जो कमीज़ है ना, इसको आपने ऐसे फोल्ड, अपनी कमीज़ अपनी कमीज़ को, अपनी कमीज़ को जो गुस्ल दे रहा है ना, वो अपनी कमीज़ को ऊपर तक फोल्ड कर लेता है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप गुस्ल दे रहे हैं, पानी की छींटें दूसरी चीज़ें आती हैं ना, तो जब कपड़ा रहेगा ना तो उसमें नजासत रह जाएगी। जब आप इसको ऊपर तक लेके चले जाते हैं, ये कौन ही इसे ऊपर रखना है, ऐसे नहीं रखना, क्योंकि हम तो इजी वे है कि आप जो है ऐसे दोस्त ना, वो घर से वो टी शर्ट लेकर आते हैं, टी शर्ट पहन लें, ये जो कपड़े हैं ना, ये सारा कुछ ये तंग करते हैं, क्योंकि वो लगते हैं जिस्म को, ठीक है ना। तो एप्रन क्या वो होता है सारा, वो जो
کرتا عورتیں جو پہنتی ہیں اس کو بھی اگر تھوڑا سا پہنیں گے تو وہ کور کر لیتا ہے. سیکنڈ بات یہ اگر آپ اتار کے اس کو فوراً وہاں رکھیں شرٹ لگا کے پہن لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے آسانی رہے گی. وہ یعنی کہ جسم کو ٹچ نہیں کرے گا. آپ کے کپڑے جو ہے نا اس کو ٹچ نہیں کرنے چاہیے تاکہ وہ نجاست کی کیفیت نہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہو جائے. جب آپ یہ سارا ایک دفعہ اس کو اچھی طرح پاک صاف کر لیتے ہیں اب آتا ہے ایکچوئل غسل. یعنی جو 3 غسل ہم نے دینے ہیں اب ان کی باری آتی ہے. یعنی پہلے آب صدر ہے, پھر آب کافور ہے, پھر آب خالص ہے. ان 3 چیزوں سے ہم نے اس مردے کو جو بھی مردہ ہوتا ہے ہم نے اسے 3 چیزوں سے 3 پانی سے غسل دینا ہے. اور اگر یہ بھی ہے کہ کسی وقت اگر آپ کے پاس کافور نہیں ہے کوئی چیز نہیں مل رہی تو آپ نے اس کی جگہ آب خالص سے غسل اس کو دینا ضرور ہے. یعنی اس نیت سے کہ بھئی میں اس چیز کا غسل دے رہا ہوں, دینے تین ہی ہے. اور ایک اور بات بھی آگے تھی خیال نہیں رہا پہلے کہ 4 مہینے سے آنورڈ جو بچہ ہوگا نا آپ اس کو غسل دیں. یعنی 4 مہینے کے بعد جو کیفیت بن جاتی ہے اس میں, اور اگر 4 مہینے سے تھوڑا کم ہو لیکن اس کی باڈی پوری بن چکی ہے تو اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ غسل دینا ہے. 4 مہینے سے کم ہے, دوسرا ہے جو باڈی نہیں بنی ہوئی ہے تو پھر ہم غسل اس کو نہیں دیں گے, ویسے کپڑے میں لپیٹ کے نا اسے دفن کر دیں گے. ٹھیک ہے. وہ اب پھر جب ہم نے اس کو اب سٹارٹ کرنا غسل سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ ایک دفعہ ذرا سب نے جو غسل دے رہے ہیں ان کو صاف کر لینا ہے اور نیت کرنی ہے. سب سے پہلے نیت کرنی کہ میں آب صدر سے غسل دیتا ہوں اس حاضر میت کو واجب قربتان نہیں لاتا یا قربتان نہیں لاتا. اگر آپ یہ بھی بات نیت کر لیں تو پھر جو آپ کے ساتھ غسل دینے والے ہیں یہ پانی نیت اس کا جنابت بھی کر سکتے ہیں. انسان کا ہے, انسان کا پتہ نہیں ہوتا بعض اوقات کوئی باہر ہے یا کوئی گیس سے صاف ہو وہ یعنی اس وقت کئی غسل بھی اگر ہوں گے نا ایک ہی غسل چلے گا. ٹھیک ہے نا. جنوب بھی ہو جاتا ہے بعض کا ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی کیفیت میں بندے کا ہوتا ہے. کیونکہ میں نے جیسے بتایا نا یورین کے ذریعے کہتے ہیں یورین کے ذریعے جو انسان کی تعمیر کا ایک سبب بنتا ہے نا اس دنیا میں آنے کا وہ اس میں نکلتا ہے وہ اس کی کیفیت ہوتی ہے. جی وہ اس کی بات نہیں, یہ تو ایک وہ چیز اور ہے نا احترام ہوتا ہے. یہ جو انسان جس کے ساتھ جس کا وجود آتا ہے اس دنیا میں دنیا کی چیزیں ہی ہوتی ہیں وہ وجود اس طرح سے ریلیز ہوتا ہے. تو اس وقت جب ہم نے نیت کر لی کہ اب آپ اس طرح سے غسل دیتا ہوں واجب قربتان اللہ, جو آپ کے ساتھ ساتھ افراد موجود ہوتے ہیں جو اس وقت اسے غسل دے رہے ہیں وہ اس کے ساتھ نیت کریں گے. ایک آدمی پانی ڈال رہا ہوتا ہے اس کی بات ایسی نہیں ہے کہ وہ بھی کرے گا, لیکن اگر وہ بھی ساتھ انوالو ہو جاتا ہے تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کے لیے پہلے کیسے ہوگا, پہلے جیسے غسل دیتے ہیں پہلے سرد ہوتے ہیں. اس میں وضو پہلے کروانا بیٹا مستحب ہے آپ کی بات بجائے ٹھیک ہے. میں یعنی مستحب ہے. جیسے ہم وہی بات اگر غسل کی بات کریں تو اس میں بھی یہ ہے کہ پہلے کلی کریں, ناک میں پانی ڈالیں, منہ میں ڈالیں, پھر آپ پورے جسم کو کریں. یہ مستحب بات ہے. اس کو کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنا منہ ہاتھ گلا کریں تو آپ ایسے ہاتھ کرتے ہیں, ایسے منہ پہ پانی ڈالتے ہیں. یہ اس کا ایک کیفیت ہے. لیکن یعنی ہم وہ اس کیفیت میں چل نہیں گئے تو ہم واجب کی بات کر رہے ہیں کہ جو اس کے اوپر واجب ہے اس کو ادا کریں. ٹھیک ہے. اب نیت کر کے پھر پہلے یہ سر ہے, اس سر پہ آپ نے پانی ڈالنا ہے, روٹیٹ کر کے وہ عملاً جو ہے نا اس کی کیفیت اور ہوتی ہے. کہ آپ نے نیچے جو ہے نا ہاتھ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ نیچے ہاتھ رکھا ہوا اور اٹھانا, ہم نے یہ سارا جسم ملنا ہے سب کو, اس کے ادھر کو پانی کے ذریعے ادھر ڈالیں گے, یہ سب طرف ہم نے, اور اس کے گلے یہ سب چیز کو اچھی طرح دھونا ہے. ایسے ہی ہے جیسے آپ سوچیں کہ آپ ایک بچے کو چھوٹے کو غسل دے رہے ہیں نا, آپ نے اپنے ہاتھ سے اسے روٹیٹ کرنا ہے جب تک کہ وہ یہ سب طرف آپ نے ہاتھ پہنچانا ہے. یہ نہیں تکلف کرنا کہ یار یہ میں کام جو ہے نا چھوڑ دیے یار کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہو جائے گا. یہ آپ نے سب چیزوں کو یہ سب ہر جگہ لگنا چاہیے. آپ کا ہاتھ ہر جگہ جو ہے اس کا وہ پہنچنا چاہیے کہ جب خشک نہ رہے کوئی چیز. ہاں خشک نہ رہے. پھر آپ جو ہے رائٹ سائڈ کو اسٹارٹ کر دیتے ہیں. رائٹ سائڈ کو اسٹارٹ کرنے کے لیے بھی آپ پہلے کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ ادھر سے کوشش کرتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں, یہ پانی کو ڈالتا ہے تو ساتھ آپ ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں. بغل ہے اس میں بھی ڈال دیا اور یہ ڈالتے ہیں. یہاں سے کراس کرنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا انگلیوں کو تھوڑا ہلکا سا کھول لیتے ہیں, کسی طرح وہ پانی وہاں تک چلا جائے. بعض کا یہ رنگ ہوتی ہے, رنگ جو ہے تنگ کر رہی ہوتی ہے, لیکن جب آپ غسل دیتے ہیں نا کچھ دیر کے بعد یہ نارمل ہو جاتی ہے. جب نارمل ہو جائے پھر آپ اسے اتارتے ہیں. اس وقت ہاتھ میں سویلنگ میں ہوتا ہے
वो तंग कर रहा था, लेकिन जब आप घुसल देते हैं थोड़ा सा तो फिर ये जो ना इंशाल्लाह ये साफ़ हो जाता है, नरम हो जाता है। तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आराम से उसको जो है ना पॉसिबल जो आपके पास है उसको आप साफ़ कर लें। फिर ये है कि आप जो है ये जो जगह होती है यहाँ से आप डिवाइड करके सारे काम कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि आप ऊपर से लें तो शुरू नीचे से तक चले जाएंगे, क्योंकि बॉडी लेटी हुई है। अगर खड़े में हो तो आप ऊपर डालें, पानी नीचे तक चला जाएगा। तो ये आप पानी ऊपर डालेंगे, हाफ बॉडी से ऊपर तक आपने कवर करना है, नीचे तक यहाँ लेकर आना है। ये यहाँ तक आपने इस जगह तक जो शर्मगाह है यहाँ तक आपने करना है। ये भी सब जगह आपने एक दफ़ा इस तरह पानी डाल देना। फिर आपने बैक साइड पे करना इसी तरह, यानी आपने ये बॉडी इधर कर देनी। इस तरह एक बंदे को कहना कि ये आप यहाँ से ये वाली जगह है, एक हिप, कोई बात नहीं, एक हिप और एक कंधा, यहीं पे आपने फोल्ड करना है। ये ऐसे उठाएंगे, ये ऐसे ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। जब ऊपर हो जाएगा थोड़ा, अब आप ये पानी इधर से पानी डाल रहा है, ये आपने सारा जो है ना ये कवर कर देना। ये इसकी हिप जो है ना इसके सारे हाथ उठा ले पानी जाने, जो वो जो वो आदमी ने उठाया होता है ना, रखा होता है, उसे भी कहा जाता है कि भाई आप हाथ को ना यानी थोड़ा सा ऊपर नीचे करें, ताकि जो पानी है उसकी जो बॉडी है वहाँ तक जो है वो पहुँच जाए। जब ये हो जाता है आप उसको फिर वापस इसके बाद फिर यही प्रोसेस होता है कि हम जैसे कपड़ा डाला हुआ हमने, उस कपड़े को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, उसे कहेंगे पानी डालो। वो आपने शर्मगाह की दोनों तरफ हाथ फेर कर उठाना। उसके बाद फिर आपने ये यहाँ से पानी लेकर इसी तरह अपने हाथ शुरू फेरते रहना, जिस तरह आप गुस्ल करते हैं अपना। और गुस्ल भी आपका तभी ठीक है जब आप हाथ फेरेंगे और पानी वहाँ तक पहुँचाएंगे। यहाँ तक पहुँचा के ये यहाँ तक उसे क्रॉस कराना है। यहाँ थोड़ी देर उसे को यार ये पानी आखिर तक पहुँच जाए। ये सब जगह देखेंगे कि यार ये कोई रह तो नहीं गई, कोई मसला तो नहीं है। ये जो नाखून होते हैं ना ये तंग करते हैं। आपको पता है कि गुस्ल में अगर ज़रा सी जगह भी रह जाए तो पूरा गुस्ल ठीक नहीं होता। इसी तरह आपने यहाँ भी यही महसूस करना है कि यार हो गया नहीं हुआ। ये आपने बस ख्याल रखना है कि ये जो जगह है ना इसके ऊपर आपने हाथ फेरना अपना। और जब सफाई भी कर रहे होते हैं ना तो उमूमन ऐसे ही होता है कि एड़ियाँ जो होती हैं ना, ये सब चीज़ें होती हैं ना, ये वो जैसे जैसे पानी पड़ता है ना तो जो मैल है ना नरम होना शुरू हो जाता है। वो आप उसको एक दो दफ़ा ज़रा साफ़ करें अच्छी तरह। लेकिन किसी को सब ये जो जगह होती है ना ये मुझसे थोड़ा सा मैल जमा होता है, तो जब ये थोड़ा सा पड़ता है ना वो नॉर्मल हो जाती है और फिर मैल निकलता है। तो आपने यानी ये सारा प्रोसेस आपने इस तरह ही करना कि जब ये इधर हो जाएगा फिर इसी तरह आपने दूसरी तरफ से ये जो हमने प्रोसेस करना है ये एक दफ़ा करना है या तीन दफ़ा करना है? बेटा 3 दफ़ा, 3 एक दफ़ा वाजिब है, लेकिन हम एक दफ़ा ही करते हैं। और अगर एक दफ़ा के अंदर वो जो हमारे पास बर्तन है उसको पानी खत्म हो जाता है? नहीं वो ख़त्म नहीं होता। वो जो चला रहे होते हैं ना पानी, वो उन्हें पता होता है कि पानी की क्या, वो पूछते रहते हैं कभी क्या सूखता है। इसके अलावा ये भी है ना जब आपने काफूर और आप सदर का और आप काफूर को जो बनाना है उस वक्त आपने एक बात को सबसे अहम रखना है कि ज़्यादा नहीं डालना, यानी पानी में थोड़ा सा उसकी स्मेल आ जाए और उसका वो कैफियत बन जाए, वो पानी ठीक है। ये ना हो कि पानी मुज़ाफ यानी मिला हुआ हो जाए और वो फिर पानी जो दूसरे बॉडी को पाक नहीं करे। उस सूरत हाल में थोड़ी सी मकदार होती है, यानी सिर्फ थोड़े से एक प्लेट में जितने पत्ते आ जाते हैं ना उसके बेरी के, उसको आप पानी में रखें और उसे 2-3-4 दफ़ा मलें, ज़्यादा नहीं करना। जब आप 2-3 दफ़ा मलेंगे फिर निकल आएगा थोड़ा सा छाग, फिर आप मलेंगे फिर छाग निकलेगा, फिर मलेंगे छाग निकल आएगा, फिर आप उसको छोड़ दें और वो पानी उसका वो। इसी तरह काफूर है भी थोड़ी सी मकदार में डाल के पानी उसको पिला दिया जाता है ताकि वो इस्तेमाल हो सके, आराम से काम हो। क्योंकि पानी अगर वो मुज़ाफ यानी बिल्कुल ज़्यादा डल गया तो वो फिर पानी जो है ना तो वो पाक खुद तो पाक होता है लेकिन दूसरे को पाक नहीं करता। इसलिए हमने बहुत कम मकदार में सिर्फ उसको उसका स्मेल करनी या जायका डालना है या उसका असर बीच में आना है, वही हमें काम करना है। इसी तरह हमने दूसरे हिस्से को भी करना है, यानी ये जब उधर धोना है फिर वो इसी तरह हमने प्रोसेस करेंगे कि पहले ये एक बाजू है, उस बाजू को आप लेके चलेंगे, ये सब उसको धोएंगे, ये सारा कुछ आपने इस तरह करेंगे, सारा उसको एक मिश्र करना है इंशाल्लाह। जब यानी हमारा है तो बल्कि यहाँ ये है कि हम जो बड़ी कैटल है ना वो लेके आएंगे इंशाल्लाह। इसमें कैटल होगी कि वो पहले सर धो लिया, फिर इधर से डाला पानी, साथ ही थोड़ा सा ऊपर उठाया, वो सब अगला पिछला हिस्सा ना कवर हो, फिर हम उसकी नीचे वाले हिस्से को भी आराम आराम से इस तरह लेके चलते हैं। 3 किस्म के पानी इस्तेमाल हो गया जी जी। तो एक दफ़ा में हर दफ़ा में ये प्रोसेस करना, जैसे आप
बेरी का पानी है उसका भी आप लोग को पहला गुसल जो है वो बेरी का पानी देना, पहला बेरी का देना, फिर काफूर है, फिर आप फिर आखिर। अच्छा, तो यहाँ जो आप खास में आखिर में जो देंगे वो अक्सर काफूर जब होता है वो भी ज़र्रात जो है ना वो हो जाते हैं, उसको साफ़ करना तो ज़रूरी नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि जब वो चिकनाई को आज काफूर भी ऐसे ही होता है, वो भी इंसान को शक डाल रहा था कि जैसे जाने चिकनाई रह गई है, तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको नहीं वो वैसे जस्ट लाइक ना जब हम आते हैं तो वो डाल देते हैं सवाल। असल में ये जो काफूर चिकनाई से ज़्यादा है ना एंटीसेप्टिक है, बेरी भी यही मसला है उसका, यानी दोनों चीज़ें मेडिकल ही हैं। असल बात यह है कि ये इस वक्त मिलते हैं कि उससे जो है ना जब मेडिकल बात आती है तो कहते हैं इसके अंदर से बहुत कुछ निकलता है, जरासीम उसके होते हैं, बॉडी के होते हैं, वो निकलते हैं। जैसे हम कोरोना में चलते थे ना, लोग अवॉइड करते थे कि इसको उससे ही ना दें, से पता नहीं क्या क्या अंदर से निकल रहा है, तो ये होता है। लेकिन यानी हमने ये जो चीज़ें कुदरतन अल्लाह ने रखी है वो इसलिए रखी हुई है ताकि मेडिकली भी जो है ना जो देने वाला है उससे नुकसान ना हो, वो सिक्योर रहे, ताकि उसे मसला ना हो। वैसे भी जब ये जब हम ये मतलब इसको देते हैं ना तो कोशिश करते हैं हम कपड़ा भी चेंज कर लेते हैं, या हम ऊपर पानी डाल के ना आबे खालिश डाल के, ये जो ये हम शर्म का होती है ना, जब हम एक दफ़ा साफ़ कर लेते हैं ना गंदगी को ये वो, उसके बाद फिर हम कपड़ा चेंज भी कर लेते हैं, या उसी कपड़े को ना पानी अच्छी तरह उसके ऊपर डाल के ना ज़रा से निचोड़ा उसके ऊपर ही शर्मगाह के ऊपर ही, और उससे फिर इस तरह छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम काफूर आब सदर ये करते हैं उस वक्त भी हमारी कोशिश ये होती है कि खालिश पानी से एक दफ़ा उसे साफ़ कर लीजिए, ताकि वो जो पानी है जो इस वक्त आब सदर या पे काफूर का है वो उसका सिस्टम, उसका जायका या उसके असरार जो है ना वो उस बॉडी से हट जाए। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा हो कपड़ा हो तो हम हर दफ़ा कपड़ा चेंज भी कर सकते हैं कि ये शर्मगाह पे डालने के लिए। हाँ जी जी, तो ये जैसे भाई ने थोड़ी सी बात की ना, जैसे सबने गुस्सा दिया ना, तो जब हम एक दफ़ा गुस्सा दे देते हैं ना तो फिर हाथ से ना वो जो ये पत्ते और ये दूसरी चीज़ें होती हैं या काफूर लगा हुआ होता है वो थोड़ा सा हाथ से उसे साफ़ कर देते हैं ताकि वो नीचे अगर कहीं नज़र आ रहा है ना तो, लेकिन वो कहते हैं कि बेरी के पत्तों को तो मतलब मल के अच्छी तरह छान लिया जाए, छान लिया जाए वो तो फिर वो बेहतर नहीं है। आते। खाली पत्तों के साथ में काफूर में अक्सर ये होता है कि काफूर जब मिक्स करते हैं ना तो ये ऐसे महसूस वो होता रह जाता है, वो जब खालिश देंगे ना हाँ वो तो उसमें सारा पानी उतर जाए। तब यानी कि वो वो मेरा भाई वो बात ऐसी है कि जो चीज़ आती है ना हकीम की दुकान से काफूर, वो होता है डलियों का नहीं होता, जो डली वाला होता है ना उसमें मोम थोड़ी सी बनी मिक्सर से सेव किया हुआ, ठीक है ना। अगर आप वहाँ से लेकर आएंगे ना तो वो तो वैसे उड़ जाता है। बड़ी मंडी का जो होता है ना खुला हुआ, ये हकीम की दुकान से हकीम की दुकान से जो काफूर होगा ना खुला उसमें लेकर खुशबू होती है, आएंगे, यानी खुला ला के रखेंगे ताकि वो इजी रहे। खुशबू में ये होगा वो उसमें मिक्स करेंगे वो तुम्हें रहेगा नहीं, जो डलिए नहीं वो मोम जो होता है वो रह जाता है नजर आता है। हाँ, तो ये इसके बाद फिर इसी तरह यानी कि जब हम काफूर बनाएंगे, काफूर का इसी तरह पानी बनाएंगे, बनाकर फिर इसी तरह गुस्ल देंगे। ये इसी तरह पहले सर है। हाँ, एक और बात भी साथ इसमें करी, जब हमने एक आब सदर से यानी बेरी के पत्तों से गुस्ल दे दिया, फिर जो गुस्ल देने वाले हैं जो हमने ये जैसे उनको ऊपर किया हुआ उसने कोहनी तक अपने हाथ को धोना है दोबारा हर बार जो हर गुस्ल में उसने कोहनी के अपने जो यहाँ से यहाँ तक आपने किया हुआ है। और ये भी है कि आपने गुस्सा जब देना ना आपकी अंगूठी होनी चाहिए ना आपकी घड़ी होनी चाहिए, ये सब कोई चीज़, क्योंकि ये बॉडी को जिस्म को लगेगी तो उसको चोट लग सकती है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि उसको चोट नहीं लगना चाहिए। आप हर चीज़ ऐसी चीज़ जो है ना जो आपके पास है कोशिश होनी चाहिए ये चीज़ें भी जो है ना आपकी ठीक रहनी चाहिए। नाखून जो है वो नहीं होने चाहिए, मर्दों कम ही होते हैं औरतों के होते हैं। लेकिन कि अब बेरी के पत्तों का तो आपने गुस्ल दे दिया, जब आप काफूर का शुरू करेंगे तो नियत दोबारा करनी है आपको? हर दफ़ा होगी, तीनों बार नियत होगी। जब आब सदर होगा ना तो यही कहने के मैं आब सदर से गुस्सा देता हूँ इस हाजिर मैयत को वाजिब को रुबतान के दवा, लेकिन मैं आब काफूर से गुस्सा देता हूँ इस मैयत को वाजिब को रुबतान के दवा, मैं आब खालिद से गुस्सा देता हूँ इस मैयत को वाजिब को रुबतान के दवा। यानी हर दफ़ा तीनों दफ़ा जो अफराद मौजूद हैं उन्होंने नियत कर ली, सबने यानी इस चीज़ का वो करना है। फिर बाद का ऐसा होता है कि मुर्दे का मुंह खुला रह जाता है, बंद नहीं होता, उसके अंदर एक ध्यान रखा जाए कि पानी मुंह में ना जाए। ठीक है, वो ये है कि कॉटन रख लें, लेकिन बेटा ऐसे होता है कि नाक के जरिए भी जो पानी अंदर होगा जैसे कर रहे होते हैं ना, ऐसा बहुत मसला होता है कि ये मुंह के जरिए पानी चला जाता है। लेकिन बाज़ का जब आप इसको राइट साइड लेफ्ट साइड पे फोल्ड करते हैं ना, मोड़ते हैं, पानी मुंह से निकल के आ जाता है। बाज़ का लोग ये भी कहते हैं मुँह खुला रह जाता है तो अंगूठे के जरिए इसके जरिए मुँह अंदर उंगली मार देते हैं। लेकिन अच्छी बात जो भी मसला है एहतियात करनी चाहिए, कम से कम जो है ना कोई ऐसी बात हो जिससे जो है ना ये वाली कैफियत ऐसी बने। ये जब सब तीनों गुस्ल दे दिए गए, तरीक़ाकार ऐसे ही है, ठीक है ना, आपको सबको माशाल्लाह। तो तरीक़ेकार इसी तरह में तीनों दफ़ा यही काम करना है और तीनों दफ़ा हमारे हर बर्तन जो है ना अलग अलग रहेगा,
जब हम आप सदर से देंगे यानी बेरी के पत्तों से देंगे, फिर वो एक बर्तन और एक जो चीज़ है बाल्टी वो अलग इस्तेमाल होगी। जब इसको हम ख़त्म कर देंगे फिर हम दूसरी पार्टी अलग बनाएंगे। ये नहीं है कि आप उसे धो के उसे साफ़ करके फिर दोबारा जो है ना नेक्स्ट उसमें चेंज करेंगे और फिर उसको जो है ना इसी तरह हम प्रोसेस करेंगे ताकि मिक्स ना हो। ये चीज़ है कि यानी एक चीज़ एक रंग या एक केमिकल जो यूज़ हो रहा है ना तो एक ही पहले मुकम्मल करें, उसके बाद नेक्स्ट पे फिर दूसरा आ जाए, वो उसके दूसरे के अपने असरात हो जाए। ठीक है, यानी ये हम इसका फिर प्रोसेस ये होता है। जब ये अब सब गुस्सा दे देते हैं ना, अब इसके बाद जो है ना नेक्स्ट स्टेप होता है पानी जो आबे सदर और आबे काबुल वो हम पहले से बना के रख सकते हैं या उसी टाइम बनाना है? तो बेटा जैसे ही शुरू होता है ना, शुरू होने से पहले बाल्टी जैसे हमने बाल्टी बना के रखी हुई है तो उसी वक्त बन जाता है। यानी हमने जो यानी जैसे 2-3 अफराद होते हैं ना, किसी गुसल की तैयारी होती है ना, जब गुसल देना तो ये चीज़ें उस टाइम ही तैयार होंगी पहले से बना के। हाँ ये भाई ने भी कहा, मैं बताया नहीं कि जो साबुन इस्तेमाल करना है वो खुशबू के बगैर होगा। और वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों के जब काफ़ी अर्सा हो जाता है तो वो अपनी शेप वगैरह नहीं कर सकते, किसी को कुछ नहीं करना, कोई कुछ नहीं, उसके लिए यानी कोई नाखून नहीं काटना, कोई आपने शेव नहीं, खत नहीं बनाना, आपने कोई कुछ नहीं करना। जो उसकी चीज़ है वो मानत उसकी उसी तरह जाएगी, लेकिन हमें किसी चीज़ को छेड़ना नहीं है। और ये अभी भाई बात कर रहे थे कि जो खुशबू वाला साबुन है वो कहीं इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ज़्यादा बेहतर है कि आप कपड़े धोने का अच्छा साबुन जैसे सूफी सोप है या कोई गाय सोप है उसको साथ इस्तेमाल करें। ये बाजार से अवेलेबल है उमरा साबुन, उसमें खुशबू नहीं आती। ठीक है, वो वाला साबुन वो भी साबुन ये रख लें, ला के रख लें या भी ये देखें ना, अगर आप ये यूज़ करते हैं ना गाय सोप या सूफी सोप, इसमें थोड़ा कॉस्टिक भी होता है, वो आपके ना जिस्म की चिकनाई को जो है ना वो कर देता है। यानी आप जैसे अगर हम अरेंज कर रहे हैं तो हम हाफ एक आधा चक्की जो है ना उसकी इस्तेमाल करें, आधी उसकी करें, ताकि वो दोनों चीज़ें हो, बहुत ज़्यादा भी ना वो लगे और बॉडी भी खुशक ना हो, ये सारी इसके को बचाते हुए। लेकिन आपने चिकनाई को दूर करना है, सबसे अहम मसला हमारा है कि हमने चिकनाई को दूर करना है। यानी जब हमें पानी डालना हम इस तरफ आ जाएंगे, ये सारा क्लियर करेंगे, जब अगला स्टेप होगा हम दूसरी तरफ खड़े हो जाएंगे, वो उसका दूसरा स्टेप इसी तरह हमें क्लियर करना है। ठीक है ना, अब तो कोई और अगर बात है तो बताएं, अभी फिर क्लियर हो जाएगा। हो जाएगा, अभी होगा, अभी होगा सारा कुछ इंशाल्लाह। इसके बाद खवातीन में ये बात आती है कि जिसने मुर्दे को ठंडी हालत में हाथ लगा दिया अब वो गुस्सा नहीं दे सकता, वो जरा क्लियर कर जिक्र हो गया। आप थोड़े लेट आए थे। आप लेट आए थे, अभी जिक्र हुआ था कि 5-6 मिनट होते हैं जब बॉडी की मेरी जान निकलती है ना, उससे 5 मिनट ठंडा होने तक जो प्रोसेस होता है ना आप हाथ लगा सकते हैं। जब इसका सारा जिस्म ठंडा हो जाएगा तो फिर जो है जो भी बॉडी को मस करेगा उसमें गुस्ल बाजी। अच्छा, उसमें ये है कि साल का पूरे हमने हाथ लगा दिया मर्द को, या हाथ लगाने के बाद क्या हम गुस्ल दे सकते हैं? ये सवाल। हाँ जी, सारी देंगे। नहीं मतलब ये है कि आपने कहा ना गुस्ल वाजिब हो जाता है। हाँ जी, तो आप गुस्ल पहले आप गुस्ल करेंगे फिर आगे से गुस्ल दे सकते यही बात सुनो ना, यही बात ये क्लियर नहीं है। वो जो आप कह रहे हो गलत है। लेकिन अब मैंने बॉडी को हाथ लगा देना, मैंने बॉडी को लेकर आया हूँ, यहाँ लिटा दिया है, मैं उसे टच कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो मेरे हाथ मस हो रहे हैं, ठीक है ना, मैं इस बॉडी को पूरा गुस्ल दूंगा हर तरह से इसे पाक साफ तहारत करके, उसके बाद में फारिग होकर फिर मैं गुस्ल से मैयत करूँगा। फिर आप गुस्ल करेंगे। हर फर्द जो भी है वो करेगा, उसको मैच होगा वो, क्योंकि वो ये नहीं है कि कोई यानी इस तरह की ऐसी बात है कि ज़ाहिर निजासत जिस्म हाथ पर नहीं है, ये रूहानियत के हवाले से है कि जी आपने आके गुस्ल देना है, आपने मुस्लिम से मैयत करना है, वो कैफियत उसी जगह रहेगी। लेकिन जो बंदा मस कर रहा है उसके ऊपर जो है ना उसको तो वाजिब है, लेकिन आफत पर वो जाके उसको वो भाई ने पहले बताया था कि जो गुस्ल दे रहा है वो खुद पहले निजात में ना ये वाले ये निजात में नहीं कहलाएगा, लेकिन खुद पहले जब आपने हाथ मुंह को लगाया तो आप निजात तो हाथ गुस्ल देना जो है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बाद में ऐसा होता है कि डेड बॉडी का कोई चीज़ वगैरह बाहर से आ रहा है, वो डेड बॉडी को जो गुस्ल देना है तो उसी वक्त देना है या जो उसका इंतजार करने के बाद देना है? इजाज़त होती है, नहीं इजाज़त होती है ना, उनको बाद में पता होता है कि भाई हो गया छिड़ लिया वो पड़ा हुआ बेचारा वहाँ पे उसको लिसन खाने में उसको लेके आ रहे हैं। जब आपको ना कहने के बाद ये है कि गुस्ल करने के बाद उसको वहाँ पे रखना पड़ेगा पहले रख देते हैं सर खाने में, पहले रख देते पता क्या चीज़ लग जाए। जी जी जी, वही मैं वही बात करने लगा हूँ। बाज़ का बॉडी बाहर से आ रही है हमारे पास, बॉडी जब बाहर से आती है
तो अंदर से केमिकल कोई जिस्म के निकल आते हैं तो वो उसको लग जाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ लगाया होता है, वो फिर कफन जो है ना आपका वो नापाक हो जाता है, इसकी जिस चीज़ें लगती हैं फिर आप आकर उसके दोबारा वो सारा काम करेंगे। इसी तरह ये है कि जब आप सरखाने में रखते हैं तो सरखाने में रखने का यही मसला होता है कि वो पहले से रखते हैं, यानी कि उसके बाद जब वहाँ से लेकर आएंगे, जैसे कि ये कुछ दिन पहले हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, अमेरिका से आया था बंदा, रोड एक्सीडेंट में उसका थोड़ा सा हुआ, तो वो 2-3 दिन उसने रखा, फिर जब वो कंफर्म हो गया बच्चे आ रहे हैं फिर उन्होंने इस तरह भाई अभी ना ये जामिअतुल मुंतज़िर में ऐसे हुआ था कि जुम्मे वाले दिन उन्होंने नमाज जनाजा की, गुस्ल वगैरह दफन किया होगा सब कुछ, और उसके बाद जनाजा जो उनका हुआ था वो इतवार के दिन हुआ था, 2 दिन उन्होंने रखा था, यानी कि नमाज जनाजा होने के बाद कि जी बच्चे आ रहे हैं, फिर इतवार के दिन दोबारा नमाज जनाजा हुई, फिर उन्होंने उसकी तस्वीर वो देखिए वो उन्हें पता है हालात का, क्योंकि देखिए मे भी उनकी जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे, जब उन्हें पता लग जाएगा ना देखने वाले को कि इसका जो कफन है वो कफन जो है ना ख़राब हो गया, नापाक हो गया, कुछ चीज़ निकल आई है, तो फ़ौरन आपने उसे चेंज करना, फिर वाजिब दोबारा कफन इसे चेंज करना है। लेकिन वो जगह होती है ना जो फ़र्ज़ क्या कोई ऐसी जगह पे उसके कलर लगा हुआ है या निजासें लगी हुई, आप उसे पाक कर लें, साफ़ कर लें, वो उसकी वही कैफियत रहेगी। लेकिन कफन जो है ना गीला हो जाता है या ख़राब हो जाता है या उसमें लग जाती है निजात, वो तो उस कैफियत में जैसे अभी ईरान में भाई हुआ कि एक डेड बॉडी को 7-7 दिन देर का लंबा पड़ा हुआ है, जाता पहले प्रोसेस सारा सीख लें, फिर ये सेशन बाद में पूछते रहेंगे, क्योंकि एक बंदा भी लेटा हुआ है इस मकसद के लिए काफ़ी देर हो गई है, उसका भी भाई भाई काम आ गए। वो वैसे उसी तरह बैठना ये तो हो गया। अब ये तो काम हो गया ना कि हमने माशाल्लाह देखिए ऐसे ही होता है ना, जरा थोड़ी बहुत जरा रिलैक्स भी हो जाए, जरा बातचीत के जरिए भी थोड़ा सा बंदा एंजॉय कर लेता है। सवाल कर रहे थे आपसे ईरान वाला, ईरान में जैसे वो 5 दिन 7 दिन लेके डेड बॉडी को जाते रहे, मुख्तलिफ जगहों पर जनाजा हुआ उनका, तो उसमें अब कैसे वो इस्तेमाल होगा कि वो कफन वगैरह से डब्बे में पैक किया हुआ बॉक्स में रखे। देखिए वो होते जाके असल बात ये कि हमारे पास जो शरी मसला है कि अगर हमारे पास बॉडी है और उसका कफन जो है नापाक हो गया है, उसको हमने पाक करना है और बॉडी को साफ कर दें, वो भी उसे पाक कर दें उस जगह जो उसकी है, उसके बाद फिर उसको बाकी जो है सर शरन नहीं है, वो शरीयत में कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जी आपने कोई बॉडी रखनी है तो पहले कफन दे दो फिर उसको बॉडी करो, शरन ऐसा नहीं ये एहतियातन है कि उस टाइम पे कर लो, इसलिए कम टाइम में एहतियात होती है दोबारा ना देना। गंदगी खून निकल रहा हो तो इसका एक्सीडेंट हो गया, चेंज कर लो, कफन चेंज कर लो। अगर आप धो सकते हैं तो धो दें, अगर नहीं तो बेसिक यही होता है कि कफन चेंज हो जाए। जैसे हमारे कई दफ़ा ऐसे हुआ को बॉडी जैसे इसकी बाहर से आई थी, इसका आया था, तो वो उस वक्त वहाँ दे देते हैं सब कुछ, लेकिन यहाँ आके फिर आपको उसको दोबारा ही सारा, क्योंकि आपके पास ज़ाहिर निजासत महसूस हो रही है, जब आपको ज़ाहिर चीज़ नज़र आ रही है तो फिर आप उसे कुछ नहीं कर सकते, फिर आप उसको जो है ना सारा साफ चेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा समर भाई, बिलफर्ज जब बंदा कब्र में लिटा देता है ना, बाद में ना लिटाते हुए ना खून निकलना शुरू हो जाता है, तो वो ऐसा काट देना चाहिए उसने, क्योंकि वो दोबारा थोड़ी निकाल के गुसल या कफन वो करवाएंगे। ऐसी कैफियत हो जाए तो उस वक्त उस चीज़ को साफ करते हैं, निकाल नहीं काट बात, जब आप ऐसा काम इस तरह नहीं कर सकते कि वो उसे चेंज करें तो उस टाइम तो बहुत मुश्किल होता है ना निकाल के लेके, और भी कोई बात आ जाती है, ठीक है ना। तो ये जब आपने करना है ना ये वाला काम, तो फिर अब आखिर पर जब ये गुस्ल आपने दे दिया सारा, आप ये शर्मगाह से कपड़ा हटा के साफ़ कपड़ा रख देते हैं, सारा जिसमें हल्का हल्का चक्कर देते हैं, नाक में जो है रुई थोड़ी रख देते हैं, मुंह के अंदर जो है ना वो बात का वो ठीक है कुछ चीज़ भी रखती है। अब होता है कि इसको हनूद करना है, हनूद भी यानी वाजिब है। हनूद का क्या मसला होता है कि काफूर जो है, काफूर जो है ना वो वाजिब जो जगह है ना जहाँ पर हम सजदा करते हैं 7 मकाम, ठीक है ना, उस पर हमने जो है ना उसको काफूर को लगाना है। खासकर काफूर में लोग खाके शफा भी मिक्स कर लेते हैं, लेकिन ये है कि क्योंकि हमने पाँव तक लगाना होता है, तो अगर खाके शफा किसी ने मिक्स कर दी है तो पाँव पे नहीं लगाया जाता, फिर आप थोड़ा सा काफूर अलग से लेके वो आप लगा दें, बाकी जगह पर आप सबसे पहले क्या होता है माथा आता है, यहाँ पे माथे पर जितना काफूर लिया वो आपने इस तरह उसको लगा दिया, ये आपने ऐसे लगा दिया। उसके बाद राइट हैंड है, आप पकड़ें ये थोड़ा सा जो है इस तरह लगा दिया, इस तरह आप ये दूसरे हाथ पर लगा दें, फिर आपने इन दोनों को लगा दिया,
پھر یہ آپ نے یہ یہاں لگانا ہے, یہ والی جگہ پہ لگانا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد مستحب ہے کہ آپ ناک پر لگائیں, جو اس کے بعد ہے, اور سینے پہ لگائیں. یہ جگہ پہ آپ کافور ایک ہے. اب آپ کا یہ جو نا یہ کام ہونا چاہیے. اب آپ نے کفن کو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں